स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी रूल्स के बारे में बताया था कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे थ्योरी का कभी कभी कभार पूछ लेता है। देखिए, मॉडर्न मेथड इसका, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, इज ऑल्सो नोन एज, ये अमेरिकन सिस्टम है, बट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। Accounting equation means the total assets will be equal to total liabilities। ध्यान से देखना इसे। अकाउंट इक्वेशन मीन्स टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़, यानी जितनी भी संपत्ति हैं वो दायित्व के बराबर हो। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इक्वेशन इज दैट बिजनेस डज नॉट हैव एनीथिंग of its own. All assets of the business are claimed by someone, either owners or outsiders. This expression can be shown in the form of following equation. इसे पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी आपके एसेट्स होंगी और उनके बराबर होनी चाहिए लाइबिलिटीज़। ऐसे ही यहाँ पर इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़। द टर्म एसेट डिनोट द रिसोर्सेज ओन्ड बाय ए बिजनेस, while the term equities denotes the claim of various parties against the asset। यानी कि liabilities are of two types। जैसे owners capital or equity, it is the claim of owners against the asset of the business। Number 2 है outsiders equity or liabilities, it is the claim of third parties such as creditors etc against the asset of the business। Thus, the assets of a business are allowed equal to the total of liabilities and capital when its relationship is shown in the equation form। It is known as accounting equation and can be presented as follows। जैसे assets equal to liabilities plus capital, फिर इसकी शॉर्ट में क्या है, A इक्वल टू L प्लस सी, और लाइबिलिटीज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल, L इक्वल टू A माइनस सी, कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, C इक्वल टू A माइनस L। स्टूडेंट, यदि हम लाइबिलिटीज और कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो एसेट्स आ जाती है, और यदि हम एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करते हैं तो लाइबिलिटीज आती हैं, और यदि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। सिंस द अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट द फंडामेंटल रिलेशनशिप among the component of the balance sheet, that is capital, liabilities and assets, therefore it is also called the balance sheet equation। देखिए, एसेट्स इक्वल टू होता है आपकी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, दोनों को ऐड कर देंगे तो एसेट्स आ जाएंगे। और लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए
यदि हम एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करते हैं तो लायबिलिटीज आएंगी, और कैपिटल यदि कैलकुलेट करेंगे तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को यदि माइनस कर देंगे तो आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन है, कभी कभी इसको शॉर्ट नोट में मालूम कर लेता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मीनिंग एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी के हिसाब से इसको भी शॉर्ट नोट में मालूम कर लेता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन in the light of accounting equation requires the understanding of the rules of debit and credit through accounts. जैसे कि an account has also two parts. The left side of an account is debit and right side of an account is credit. यानी टू पार्ट्स होते हैं, एक भाग उसका डेबिट और दूसरा भाग क्रेडिट। Thus, debit means to write an account on the left side, or credit side means write on the account of the right side. When the account is entered on the left hand side of account, it is the debit and the account is said to be debited. When an account is entered the right hand side, it is a credit and the account is said to be credit. It is the abbreviated from debit stand for and DR stand for debit and CR stand for credit. Student, an account is a formal record of all transactions relating to change in particular them. Through it, transactions of similar nature are brought together at one place in a book called the ledger. Thus, an account is a section of the ledger in which all transactions relating to the same activity that has taken place during a given period are summarized and accumulated. Individual accounts are opened for every debtor and creditor for each head of expenses, revenue, assets and liabilities. स्टूडेंट इसमें टू पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बताया आपके एक तरफ डेबिट साइड और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड। अब इसकी फॉर एग्जांपल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट हेडेड कैश अकाउंट एंड इट्स फॉर्मेट विल बी एज फॉलोज। बताया था लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट, पीछे भी इसको बता चुके हैं। कैश अकाउंट एज ए फॉर्मेट बना दिया है ये कि आपके बाईं तरफ डेबिट, सीधी तरफ क्रेडिट। अब वैसे तो स्टूडेंट इसके रूल्स हैं अलग अलग, जैसे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड व्हेन टू राइट on the credit side of an account. According to American system, all the accounts are classified into following 5 categories. जैसे कि आपकी अकाउंट एसेट है, लायबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट है और आपके एक्सपेंसेस। अब रिगार्डिंग द एसेट्स के लिए यदि देखते हैं, डेबिट एक्विजिशन ऑफ एन इंक्रीज इन एसेट, कैपिटल डिस्पोजल ऑफ द डिक्रीज इन एसेट। जैसे शॉर्ट में देखें, यदि
डेबिट द इंक्रीज इन एसेट और क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। यदि कोई भी एसेट्स इंक्रीज है तो उसको डेबिट साइड, और यदि क्रेडिट है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे क्रेडिट साइड। फिर नंबर 2 आपके लायबिलिटी, डेबिट एनी डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट एनी इंक्रीज लायबिलिटी। देखिए, यदि लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट, और यदि लायबिलिटी इंक्रीज है तो क्रेडिट। ये इसका रूल्स हैं। अब आता है कैपिटल की बात। डेबिट विड्रॉल फ्रॉम एंड डिक्रीज इन कैपिटल एंड क्रेडिट एडिशन टू एन इंक्रीज इन कैपिटल। यदि कैपिटल डिक्रीज है तो डेबिट साइड, और यदि इंक्रीज है तो क्रेडिट। अब नंबर 4 इनकम। इनकम देखिए, डेबिट एनी डिक्रीज इन प्रॉफिट, क्रेडिट एनी इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। यदि इनकम है और इनकम डिक्रीज है तो डेबिट साइड, और इनकम इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड। नंबर 5 आता है आपके एक्सपेंसेस। डेबिट एनी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्रेडिट एनी डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। पूरा। अब दे इंक्रीज है एक्सपेंसेस तो डेबिट, और डिक्रीज है एक्सपेंसेस तो क्रेडिट साइड। स्टूडेंट, इन सभी रूल्स के बारे में डिस्कस किया। आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसके बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बुक कीपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। थैंक यू स्टूडेंट।